students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is number system. In this chapter, we will learn number system, binary number system, conversion of binary into decimal number system, hexadecimal number system, binary addition, binary multiplication, decimal number system, conversion of decimal into binary number system, octal number system, arithmetic operations, binary subtraction, binary division. तो एक कंप्यूटर पे आपकी बाइनरी, हेक्सागोनल, डेसिमल, अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Number system. In earlier days, when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks, etc. These methods were not adequate and had many limitations. Many number systems were introduced with the passage of time, like decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system. तो पहले के टाइम पे जब कोई कैलकुलेटिंग टूल्स नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम के जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो फिंगर्स के थ्रू, आपके पेबल्स के थ्रू, स्टोन्स के थ्रू कैलकुलेशन करा करते थे. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आपके अलग अलग टाइप की कैलकुलेटिंग मेथड्स आने लग गए, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम. The need for counting has paved the path to introduce decimal number system in which 0, 1, 2, 3, 9 are used to form any number. Most of our arithmetic operations are performed with decimal numbers. It consists of 10 digits, that is 0 to 9, with the base 10. Each number can be used individually or they can be grouped to form a numeric value, example 82, minus 256, 52.87, etc. The value of each digit in a number depends upon the following: the face value of the digits, the base of the number system, the position of the digit in the number. For example, the number 547 can be understood in powers of its base. Units is equals to 10, tens is equals to 40, hundreds is equals to 500 and total is 547. 7 into 10 to the power 0, 4 is 4 into 10 to the power 1 and 5 into 10 to the power 2. तो सबसे पहला आपका आता है डेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें आपके 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज यूज होती हैं और आपका बेस लिया जाता है 10. तो सबसे पहले आपका ये नंबर सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपके 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स यूज होते हैं, बेस आपका 10 होता है और अलग अलग वैल्यूज में आपको यहाँ पर नंबरिंग्स दिखाई जा सकती हैं, जैसे कि 82, माइनस 256, 52.87. तो इसमें आपके अलग अलग नंबर्स को डिस्प्ले करा जाता है. अब आपके जो नंबर्स होते हैं वो किन तरीके से आपके आइडेंटिफाई होते हैं. पहला है फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम और फिर उसके बाद है पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर. जैसे कि नीचे आपका एक नंबर है 547, तो यूनिट्स प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे 40 है और हंड्रेड्स की प्लेस पे 500 है. तो ये आपकी इसकी अलग अलग पोजिशनिंग है, कौन सा डिजिट कौन सी फेस वैल्यू पर आपका आता है. Observation. The positional value of each digit increases 10 folds as we move from right to left. In the above mentioned example, 5, 4 and 7 are the face values of digits and the place values are hundreds, tens and units respectively. The face value depends on the position of the digit in the number. तो यहाँ पर आपने अगर ऑब्जर्व करा होगा तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ आप मुड़ते हैं तो आपकी हर एक डिजिट 10 फोल्ड्स आपकी आगे बढ़ जाती है. तो यहाँ पे 547 आपकी फेस वैल्यू थी और टेंस, हंड्रेड्स और यूनिट्स इनकी पोजीशन थी, डिजिट की पोजीशन थी कि कौन सी फेस वैल्यू में वो, कौन सी पोजीशन पे वो आएंगे. दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम. द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 digits, that is 0 and 1. Since this system uses 2 digits, it has the base 2. All digital computers use this number system and convert the data input from the decimal format into its binary equivalent. दूसरा है बाइनरी. बाइनरी का मतलब ही होता है 2, बाय का मतलब होता है 2. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेचुरली 2 ही नंबर्स यूज होते हैं किसी भी टाइप की कैलकुलेशन के लिए, वो है 0 और 1. इसीलिए बेस लिया जाता है 2 क्योंकि नंबर्स यूज होते हैं 2. ये आपका जो होता है, जितने भी आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट पहले किया जाता है. जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो इसी फॉर्मेट, बाइनरी नंबर सिस्टम के ही फॉर्मेट पे काम करते हैं. वाई बाइनरी?
A computer cannot understand human language. The data which is entered into a computer is converted into binary form because a computer understands only binary code. It further converts the binary results into their decimal equivalents for output. अब अच्छा खासा काम चल रहा था कैलकुलेशन का आपके डेसिमल नंबर सिस्टम से, तो बाइनरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाइनरी की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो आप कोई भी डेटा जब आप डालते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग आप कंप्यूटर पे करते हैं तो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज को सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही आपकी कंप्यूटर की कोई प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन होती है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम की। Know it. Aryabhat was India's greatest mathematician and astronomer. He introduced the concept of zero, without which modern computer technology would have been non-existent. तो आर्यभट्ट जो कि एक बहुत ही बड़े इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जीरो नंबर का इन्वेंशन किया था। अगर जीरो नंबर इन्वेंट नहीं किया जाता तो कंप्यूटर जो आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जीरो नहीं होता तो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर की कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती। Conversion of decimal into binary number system. The equivalence between binary and decimal numbers can be understood with the given examples. To convert a decimal number into a binary number, follow the given rules. Step 1. Divide the given decimal number with the base 2. Step 2. Write down the remainder and divide the quotient again by 2. Step 3. Repeat the step 2 till the quotient become 0. Let us understand the conversion of decimal number into binary number with the given examples. Example 1. 225, 212 with the remainder least significant digit 1, 260, 230, 211, 00 most significant digit. Thus, 25 to the power 10 is equals to 11001 to the power 2. Example 2. 2 to 321, 2 160, 1 least significant number, 280, 240, 2200, 2110, 250, 221, 210, 01 most significant digit. Thus, 321 to the power 10 is equals to 101,000,001 to the power 2. The base of number is given as subscript. Remainders which are obtained in each step are written in reverse order to form the binary equivalent of a decimal number. अगर आपको किसी भी decimal number system को convert करना है binary में, तो सबसे पहले आपको base 2 लेकर आपके किसी भी decimal number system को उसको divide कर लेना है। divide करने के बाद आपका जो भी remainder है आपको उसको लिखना है और quotient को आपको divide करना है 2 से। आपको ये स्टेप 2 रिपीट करते रहना है, यानी कि आपको क्वोशंट को 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक आपका क्वोशंट 0 नहीं आ जाता। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे 25 को 2 बेस लेकर बार बार डिवाइड किया गया है। कब तक? जब तक एंड में आपका 0 नहीं आ गया। क्वोशंट जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आप 2 को बेस लेकर आपके नंबर को डिवाइड करते रहेंगे। दोनों ही केसेस में जब तक आपका जो क्वोशंट है वो 0 नहीं आया, उसका डिवीजन होता रहा है। और उसके बाद आपका जो रिमाइंडर हर स्टेप में आपको मिला है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है आपके डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। Conversion of binary into decimal number system. To convert a binary number into decimal number, follow the given steps. Step 1. Multiply each binary number with its positional value, which is in terms of powers of 2 starting from the extreme right digit. Step 2. Increase the power 1 by 1, keeping the base fixed as 2. Step 3. Sum up all products to get the decimal number. Example 1. THTU 1010 to the power 2, 0 into 2 to the power 0, units is equals to 0. 1 into 2 to the power 1, tens is equals to 2, 0 into 2 to the power 2, hundreds is equals to 0, 1 into 2 to the power 3, thousands is equals to 8. Thus, 1010 to the power 2 is equals to 10 base 10. Example 2, 1001 base 2, 1 into 2 to the power 0 is equals to 1, 0 into 2 to the power 1 is equals to 0, 0 into 2 to the power 2 is equals to 0, 1 into 2 to the power 3 is equals to 8. Thus, 1001 base 2 is equals to 9 base 10. Example 3, 110001 base 2, which gives us 1 into 2 to the power 8 plus 1 into 2 to the power 7 plus 0 into 2 to the power 6
plus 0 into 2 to the power 5 plus 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0, which gives us 256 plus 128 plus 0 plus 0 plus 0 plus 8 plus 0 plus 0 plus 1, which further gives us 393. Thus 110001 base 2 gives us 393 base 10. अब अगर आपको किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले तो आपको हर एक बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसकी पोजिशनल वैल्यू से, टेंस पे है, हंड्रेड्स पे है, जिस भी वैल्यू पे वो है। उसके बाद जो भी आपका जितना भी आपका टर्म आ रहा है पावर का, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्सट्रीम राइट से आपको, राइट डिजिट से आपको स्टार्ट करना है। इसके बाद आप हर एक स्टेप में आप एक एक नंबर की पावर वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे, बेस फिक्स्ड रहेगा 2 पे। उसके बाद आप सारे के सारे नंबर्स को सम अप करके उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, आपका डेसिमल नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है 1010 बेस 2 लिया गया है, तो सबसे पहले आपका 0101 है, क्योंकि आपने राइट से स्टार्ट किया है सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई में आपने बेस जो लिया है वो 2 लिया है, और हर एक लेवल पे आप देखेंगे पहले आपकी 2 की पावर 0 थी, फिर अगले लेवल पे 2 की पावर 1 हो गई, फिर नेक्स्ट पे 2 हुई, और फिर नेक्स्ट पे 3 हुई। तो राइट से आप अपने बाइनरी नंबर को स्टार्ट करेंगे लिखना 0101, मल्टीप्लाई करेंगे, बेस आप 2 लेंगे और पावर एक एक करके बढ़ाते रहेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे केस में भी बिल्कुल यही हुआ है, आपका 1001 था, रिवर्स करके भी वही रहेगा 1001, बेस आपने 2 लिया है, हर एक लेवल पे आप उसकी पावर 0 1 2 3 से बढ़ाते गए हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल 3 लेंगे, तो यहाँ पर सारे के सारे आपके जितना भी आपका सम निकला था उसका आपने प्रोडक्ट ले लिया है, आपका आंसर एंड में आ गया 393। यानी कि आपका जो 110001 बेस 2 का जो बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल आपका बनेगा 393 बेस 10। फिर आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 8 डिजिट्स, दैट इज 0 to 7 with base 8. The procedure of octal to decimal conversion is similar to binary to decimal conversion. The only difference is the change of base. तो आपका फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का मतलब ही 8 होता है, तो नेचुरली यहाँ पर आपके डिजिट्स यूज होंगे 8 और बेस 0 से लेकर 8 तक, और बेस लिया जाएगा 8। यहाँ पर भी आपके ऑक्टल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट अगर आपको करना है बाइनरी में, तो बिल्कुल जैसे आपका ऊपर वाला मेथड था जहाँ पे आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, वही प्रोसीजर होगा, लेकिन बस वहाँ पर आपने बेस लिया था 2, यहाँ पर आप बेस लेंगे 8. Hexadecimal number system. This number system contains 16 digits and therefore has the base 16. It uses the digits 0 to 9 and A to F. तो हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब ही 6 होता है, तो यहाँ पर आपका हेक्साडेसिमल का मतलब है 16 डिजिट्स आपकी यूज करी जाती हैं, यहाँ पे 16 ही आपका बेस भी लिया जाता है। नंबर्स आपके यूज होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद A से लेकर F तक, अल्फाबेट स्टार्ट हो जाता है 9 के बाद। Arithmetic operations. As a computer understands only binary code, the data given by the user is converted into binary code for processing. This processing may involve various kinds of arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on binary numbers. तो आपका फिर आता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अभी तक हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें पता चल चुका है कि आपकी जो कंप्यूटर है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, तो हर किसी एक कोड को आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होता है सो दैट योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो उस बाइनरी कोड को आप कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, और अलग अलग टाइप के जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो हर एक कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। Then comes your binary addition. The technique used to add binary numbers inside the computer is very easy and simple. This is performed in the same way as you perform addition with decimal numbers. The following table illustrates the addition of two binary digits. A plus B is equals to C. 0, 0, 0 plus 0 is equals to 0. 0, 1, 0 plus 1 is equals to 1. 1 plus 1, 0, 1 plus 0 is equals to 1. 1, 1, 1 plus 1 is equals to 0. Carry over the 1, that is 10. Example 1, compute 1,000 base 2 plus 111 base 2. 1,000 plus 0,111, which gives us 1111. Example 2, compute 111 base 2 plus 1011 base 2.
11111 plus 01011 which gives us 101010 which gives us the carry over 1111. बाइनरी एडिशन की जो टेक्निक होती है बिल्कुल उतनी ही सिंपल होती है जिस तरीके से आप एक नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम को ऐड करते हैं। जैसे कि नीचे a plus b which gives you c, 0 plus 0 which gives you 0, 0 plus 1 which gives you 1, 1 plus 0 which gives you 1 and 1 plus 1 which gives you 0. कैरी ओवर जो कि है आपका 10। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 1000 बेस 2 प्लस 111 बेस 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 1111। दूसरे एग्जाम्पल में भी आपका 11111 बेस 2 प्लस 1011 बेस 2 का एग्जाम्पल है। इन दोनों को भी जब आप ऐड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 101010 और आपका कैरी ओवर होगा 1111। Know it. While adding 1 plus 1, the output will be 10, where 0 is written under the same column and carry over 1 is shifted to the next place as it happens in decimal number addition. तो आपका जो 1 और 1 को जब आप ऐड करते हैं तो आपका आउटपुट हमेशा 10 आता है, जहां पर आपके 0 को सेम कॉलम में लिखा जाता है, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका डेसिमल नंबर एडिशन में किया जाता है। Binary subtraction, the rules given in the table must be followed to perform binary subtraction. A minus b which gives you c, 0 0 0 minus 0 gives you 0, 1 0 1 minus 0 is equals to 1, 1 1 1 minus 1 is equals to 0, 0 1 0 minus 1 is equals to 1, borrowed 1 resulting in minus 1 carried over. तो आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन को अगर फॉलो करना है तो नीचे के स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका a minus b which will give you c, 0 minus 0 will give you 0, 1 minus 0 will give you 1, 1 minus 1 will give you 0 and 0 minus 1 will give you 1. Example 1, compute 1111 base 2 minus 1010 base 2, 1111 minus 1010 which will give you 0101. Example 2, compute 1100 base 2 minus 11 base 2, 1100 minus 0011 which will give you 1001. तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल्स लिए गए हैं किस तरीके से आप बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे आपका नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसी तरीके से जो बोरोइंग होती है, कैरी फॉरवर्ड करा जाता है सब्ट्रैक्शन में, बिल्कुल उसी मैनर में किया जाता है। Know it. The number is borrowed when 1 is subtracted from 0. 10 minus 1 is equals to 1. तो आपका कोई भी नंबर बोरो किया जाता है जब 1 से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 0 से, जैसे नॉर्मल आपके सब्ट्रैक्शन में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप किसी भी 1 को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका एक नंबर बोरो किया जाता है। Binary multiplication. The rules for performing multiplication using binary number is same as that of decimal numbers. The given table illustrates the multiplication of two binary digits. A into b which gives you c, 0 0 0 into 0 is equals to 0, 0 1 0 into 1 is equals to 0, 1 0 1 into 0 is equals to 0, 1 1 1 into 1 is equals to 1. तो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नॉर्मल जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है उसी मेथड से मल्टीप्लाई करा जाता है, जैसे कि a into b which will give you c, 0 into 0 which will give you 0, 0 into 1 will also give you 0, 1 into 0 will also give you 0 and 1 into 1 will give you 1. Example 1, compute 1 base 2 into 11 base 2, 101 into 11 which will give you 101 which will further multiply 101 and finally give you 1111. Example 2, compute 1111 base 2 into 101 base 2. 1111 multiplied by 101 will give you 1111. Further multiplying will give you 0000. Again when you will multiply will give you 1111 and final result will be 10010111. तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से आप देख भी सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन उसी फॉर्मेट में हुआ है जैसे नॉर्मल किसी भी नंबर सिस्टम को आप मल्टीप्लाई करते हैं। Binary division. The method to perform division of two binary numbers is same as that of decimal numbers. See the example given below. Example 1, compute 110 base 2 divided by 10 base 2. 1110 when divided by 10 will give you 10. आपके क्वोशंट में 11 आ जाता है, नीचे आपका 010, फर्दर आपका 10 और फाइनल आपका रिमाइंडर बचता है 0। इसमें आपका 110 डिविडेंड होता है, 11 जो है क्वोशंट होगा और नीचे आपका जो 00 बचा है वो रिमाइंडर होता है। एग्जाम्पल 2, कंप्यूट 100000111 बेस 2 डिवाइडेड बाय 1001 बेस 2। जहां पर 1000011 को जब आप 1001 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशंट आपको मिलेगा 01111, नीचे आपका जो डिविडेंड है वो है 1000011,
डिवाइड करते करते आपको 1001, देन यू विल गेट 001111, फर्दर यू विल गेट 1001. इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 01101, देन यू विल गेट 1001. फर्दर माइनस करने पे द डिजिट्स विल बी 01001, 1001 और फाइनली आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0 और आपका डिवीजन का मेथड खत्म हो जाएगा. तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में डिवीजन होता है उसी फॉर्मेट में यहाँ पर भी डिवीजन का होती है. To revise, the commonly used number system is decimal number system with the base 10. The binary number system consists of 2 digits, that is 0 and 1, and has the base 2. You can perform arithmetical operations on binary numbers. The octal number system has the base 8. The hexadecimal number system has the base 16. तो आपके बहुत सारे, कम से कम 4 आपके नंबर सिस्टम है जिसमें आपके डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम आता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है और ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है. सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है. इसमें आपके 0 से लेकर 9 तक होता है, बेस आपका 10 लिया जाता है. बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके 2 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 एंड 1, 2 ही डिजिट. हेक्साडेसिमल 16 आपके डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, बेस आपका 16 लिया जाता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके 8 होते हैं, 0 से लेकर 8 तक डिजिट्स होते हैं और बेस आपका 8 लिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए.